Good evening, everyone. Welcome to Unacademy and welcome to the class, guys. So, in this session, I'm going to discuss few interesting sets from CAT 2018 LRDI. So, before we start, just let me check if everything is okay. Yes, good to go. So guys, those who are watching me for the first time, my name is Shyam Jagrut. I have been training the student for last 8 years for CAT and other MBA entrance exams. I have trained more than 7,000 students and I do teach the students for quantitative ability, logical reasoning and data interpretation. So agenda for today's session is, guys, we are going to solve 3 sets on LRDI from actual CAT paper from CAT 2018 slot 1. So you'll definitely enjoy. The sets are quite interesting today. So let us begin. Those who are new to our channel, guys, quickly subscribe to this channel on Unacademy CAT4MBA. You can also join our Telegram channel CAT4MBA for the PDF notes of each and every session. Those we conduct on YouTube, as well as for those sessions we conduct on Unacademy platform. So those who are willing to attend those special classes on Unacademy are completely free. You can just go to Play Store, download the Unacademy learning app and attend all my special classes completely free of cost. And those who are willing to go for Unacademy Plus subscription, you can choose your plan and you can avail 10% of the discount by using this code SHAM1, where in Plus subscription you'll be getting the mock test and complete support for your preparation. You'll be able to attend all the Plus courses from top educators of India. So those who are willing to go for Unacademy Plus subscription, do not forget to use this code SHAM1. It is SHYAM numeral 1. So let's begin, guys. Here's the first question. First set on LRDI from CAT 2018. So read the information. An ATM dispense exactly 5,000 rupees per withdrawal using 100, 200 and 500 rupee notes. The ATM requires every customer to give her preference for one of the 3 denomination of the notes, and it then dispenses the notes such that the number of notes of customers preferred denomination exceeds the total number of notes of the other denomination dispensed to her. So let's give it a try. Let me know if you are able to solve this question. You can drop in the comment section if you have any doubt. So guys, this is the puzzle which is simple common sense based question. You can say most of the time recent academics काफी बार ऐसे type के questions आए हैं. Nothing topic related. It is just your presence of mind and how you interpret the information. If you interpret the information in one go, you'll simply be able to answer this question. Hi Rugved, how are you? So this is the question which is more of common sense based puzzle, you can say. Chalo, let's give it a try. Okay, so are you able to understand the information? An ATM dispenses exactly 5,000 rupees per withdrawal using 100, 200 and 500 rupees notes. ATM requires every customer to give preference for one of the denomination.
देन इट डजंट मीन कि उसने जो प्रेफरेंस दिया वही उसको नोट मिलेंगे, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है. ओके, द ओनली कंडीशन गिवन हियर इज इट देन डिस्पेंस द नोट्स सच दैट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ कस्टमर्स प्रिफर्ड डिनोमिनेशन, जो भी कस्टमर ने प्रेफरेंस दिया है वो नंबर ऑफ नोट्स ज्यादा होंगे than exceeds the total number of notes of the other denomination. तो उसको कुछ दूसरे डिनोमिनेशन के नोट्स मिलेंगे, बट जो दूसरे डिनोमिनेशन होंगे, अदर डिनोमिनेशन जो नोट्स होंगे, उनका नंबर ऑफ नोट्स है जो कम रहेगा. एंड यू कैन से प्रीफर्ड डिनोमिनेशन के नंबर ऑफ नोट्स हमेशा एक्सीड करेंगे कंपेयर टू द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ द अदर डिनोमिनेशन. इज दैट क्लियर? So this is the key point, means if you understand this part, what is the condition to dispense these notes, then you are through this puzzle. And अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम पहला क्वेश्चन ट्राई करके देख सकते हो. बस इतना ही इंफॉर्मेशन है, that's it. This is the simple and short question you can have in CAT, and it's more of logic and understanding of the information. Any answer, Rugved? In how many different ways can the ATM serve a customer who gives 500 rupee notes as a preference? मीन्स अगर किसी ने 500 रुपी नोट्स का प्रेफरेंस दिया है, प्रेफरेंस सेट किया है, तो उसको कितने डिफरेंट वेज में एटीएम सर्व कर सकता है, सच दैट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ हिज प्रेफर्ड डिनोमिनेशन इज एक्सीडिंग द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ द अदर डिनोमिनेशन. दैट्स द ओनली कंडीशन वी हैव. Anyone guys, those who are watching this session guys, let me know in the comment section क्या तुम्हें ये question समझ में आ रहा है, or shall I go ahead with my explanation? Are you able to try it? Rugved, it's not 3. It's not 3. First of all, let me know कि क्या तुम्हें कोई information में समझने में confusion है? Is there any confusion? It's not 3 Rugved. Listen, the thing is, अगर let's say मैंने 500 rupees डिनोमिनेशन के लिए प्रेफरेंस दिया है, तो वन वे ऑफ सर्विंग इज हमें एग्जैक्टली एक विड्रॉल में 5,000 रुपए ही आने वाले, दैट इज फिक्स्ड. ओके, सो मैं विड्रॉ करने गया, मैंने 500 प्रेफरेंस दिया, तो हो सकता है एटीएम मुझे 10 नोट्स डिस्पेंस कर दे 500 के, एंड द टोटल अमाउंट्स बिकम्स 5,000, एंड दैट्स द वन वे टू सर्व, राइट. हो सकता है प्रीफर्ड डिनोमिनेशन के सारे मिल गए, दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, बट इट मे हैपन तुम्हें प्रीफर्ड डिनोमिनेशन के साथ साथ कुछ दूसरे डिनोमिनेशन के नोट्स मिल जाए, राइट. इट मे हैपन कि एटीएम डिस्पेंस जस्ट 9 नोट्स ऑफ 500 रुपीज, एंड आफ्टर दैट इट डिस्पेंस 100 रुपीज के 5 नोट्स, तो भी तो 500 हो रहा है, सॉरी 5,000 हो रहा है, 4,500 प्लस 500. यस, ओके ऋग्वेद, हमें टोटल नंबर ऑफ नोट्स चाहिए, बट एक चीज समझो, अभी प्रेफरेंस कितना था, प्रेफरेंस 500 का था, उसको 9 नोट्स मिले और दूसरे डिनोमिनेशन के 5 नोट मिले, दैट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 5. जो प्रीफर्ड डिनोमिनेशन थे उसके नोट्स तो ज्यादा मिल गए ना. Then ATM dispense such that the number of notes of the customer's preferred denomination exceeds the number of notes of the other denomination. That condition is satisfied, right? That's the only condition you need to cross check for. Clear? ऐसे नहीं होना चाहिए उसने 500 का प्रेफरेंस दिया तुम उसके कम नोट दे रहे हो, दूसरे नोट ज्यादा दे रहे हो. इट शुड नॉट हैपन. बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी चल सकता है. ओके, अच्छा इसमें और भी एक चीज है. नाउ लिसन, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि ये 100 के 5 नोट दे देगा, ऐसे भी हो सकता है कि प्लस ये जो एक्स्ट्रा 500 मिल रहे हैं, हो सकता है 100 के 3 नोट्स और एक 200 का भी उसमें इंक्लूड हो गया, और इट मे हैपन 100 रुपीज के एक ही नोट मिला और 200 रुपीज के 2 नोट मिले. When I'm talking about 500 rupees के 9 notes, there are 3 possibilities to do this. 500 into 9, 100 into 3, 200 into 1. Or, so these are the possible ways. So 1, 2, 3, and एक तो ये है कि सारे के सारे 500 के नोट मिले, ये एक हो गया. अभी तक मेरे 4 तो हो गए रुपए,
एंड इट्स नॉट द एंड, अभी भी आगे हमें पॉसिबिलिटीज मिलते जाएंगे। इज दैट क्लियर? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है ये ऋग्वेद? ऑल क्लियर अप टिल नाउ? अभी क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, 500 रुपीज के और थोड़ा सा नोट कम कर देते हैं, 8 ही नोट ट्राई करते हैं। इज इट पॉसिबल टू गेट 500 रुपीज के 8 नोट्स? ओके, फिर अभी क्या करते हैं, अभी दूसरे डिनोमिनेशन के यू कैन नॉट टेक 100 के 10 नोट दे दो, ऐसे अभी नहीं चल सकता है, क्योंकि ये 8 नोट्स है, तो अदर डिनोमिनेशन 8 से कम ही होना चाहिए, लेस देन 7 होना चाहिए, 7 और इक्वल टू 7 हो सकता है मैक्स टू मैक्स दूसरे डिनोमिनेशन। तो एक काम करते हैं, ऐसे तो हो सकता है ना कि 200 के 5 नोट्स मिल गए, या फिर 500 के 8 प्लस 200 के 4 एंड 100 के 2। दैट इज ऑल्सो सॉरी, हमें 1000, यस करेक्ट, ये भी सही है। ऋग्वेद, इट इज नॉट इन नंबर्स, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है 500 के इतने ही नोट होने चाहिए। कंडीशन ये है कि 500 के नोट जितने भी होंगे वो नंबर ऑफ नोट्स बाकी नोट से ज्यादा होने चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है ऋग्वेद, यहाँ पे 4 नोट्स मिले और 6 नोट, 4 और 2 6 नोट्स मिले, और 500 के हमने 8 नोट दिए, तो दैट इज ओके, बिकॉज हमने 500 के नोट तो ज्यादा रखे ना, और 200 के और 100 के नोट कम रखे हैं कंपेयर टू नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 500। Is that clear? Okay, one more possibility I will write here and you need to tell me क्या ये possible है। अगर मैं 200 के 3 नोट्स लेता हूं प्लस 100 रुपीज के 4 नोट्स लेता हूं, तो भी तो हो रहा है ना, देखो 600 और 400 1000 हो गया, और प्लस 500 के 8 नोट्स रखते हैं। देखो अभी ये 8 नोट्स है, ये 3 प्लस 4 7 हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 चलेगा क्योंकि हमने 500 के तो 8 नोट रखे। नाउ इसके आगे अगर हम जाएंगे ऋग्वेद, तो इसके बाद प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा, अगर मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं 500 के 7 नोट लेता हूं, ठीक है, फिर मुझे 3500 रुपए लगेंगे, तो मैं 200 के 7 नोट लेता हूं और एक नोट 100 का लेता हूं। इट इज नॉट राइट, बिकॉज 7 + 1 तुमने 8 नोट लिए अदर डिनोमिनेशन के, और प्रीफर्ड डिनोमिनेशन के सिर्फ 7 ही नोट लिए, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। आर क्लियर अबाउट इट? वो लास्ट वाला क्यों कैंसिल हुआ, समझ में आया तुम्हें? दिस वन वॉक, ये नहीं चलेगा, बट अब तक तो यहां तक तो कुछ भी चल सकता है। All clear? Hopefully you understood this. So how many cases were possible? 1 2 3 4 5 6 7. So there are 7 ways. In 7 different ways ATM can serve the customer, given that the number of notes of the customer's preferred denomination exceeds the number of notes of the other denominations dispensed to her. Is that okay? Have you understood, guys? All of you, let me know in case if you have any doubt. So this is the question wherein अगर तुम्हें first question आ जाता है ना, तो इस पे guys 4 question है, a complete set of 4 questions, and if you are able to understand it in one go, and it's not a big deal to understand this information, it's a really straightforward question you can have. The only thing is the trial and error part you should be able to tackle. अगर तुम ट्रायल एंड एरर से ये ढूंढ पा रहे हो प्रॉपर्ली, इट्स अ स्ट्रक्चर्ड ट्रायल एंड एरर, इट इज नॉट रैंडमली, तुम्हें कुछ भी ट्राई नहीं करना है। तुम पहले 10 नोट्स ट्राई करो, फिर 9 नोट्स के साथ सारे पॉसिबिलिटीज लिखो, 8 नोट्स के साथ लिखो, 7 नोट्स के साथ वैसे भी होने वाला नहीं है, इवन 8 नोट्स के साथ भी तुम 200 के नोट कम करने जाओगे ना, तो पॉसिबल नहीं होगा। 200 के हमें, जब तुम 500 के 8 नोट्स ले रहे हो, तो 200 के 5 4 या 3 ही ले सकते हो। तुम 2 नोट भी करोगे तो भी आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हो, तो डेफिनेटली 500 के 7 नोट्स के साथ तो पॉसिबल होगा ही नहीं आगे।
Is that clear? All of you understood this? Yes, no? Got it? सबका आ गया? फर्स्ट का आंसर 7. Hopefully all clear and you understood it properly. Okay, that's great. So let's move to the next question, and now I want you to solve it, and I can expect the answers from your side now. You understand the puzzle, everything. Read the question number 2 and try to answer it properly. Anyone who got the answer for this? Hello guys. If the ATM could serve only 10 customers with the stock of 5,500 rupees notes and the sufficient notes of the other denomination, what is the maximum number of customers among these 10 who could have given 500 rupee note as their preference? You are not able to understand this? Okay, सुनो, ATM सिर्फ 10 कस्टमर को सर्व कर पाया, 5,500 rupees डिनोमिनेशन के थे. This is the if then condition. This is only for question number 2. First thing. Okay, ATM में 10 ही कस्टमर को सर्व कर पाया एंड ATM में 50 नोट थे 500 डिनोमिनेशन के. बाकी डिनोमिनेशन के काफी नोट्स अवेलेबल थे, 100, 200, infinite notes available, maximum number of notes. Okay, what is the maximum number of customers among these 10 who could have given 500 rupees as their preference? अच्छा, एक चीज मुझे बता ऋग्वेद, कैन आई से am I audible guys? Everything is okay? Is it okay now? Okay, so Rugved, can I say पहले मुझे एक बात बताओ, अगर ये 10 कस्टमर्स हैं, क्या ऐसा हो सकता है इन्होंने सबने जाके बोला कि मुझे 500 के नोट्स चाहिए? अगर इन्होंने प्रेफरेंस सेट किया 500, तो क्या हो सकता है 50 नोट्स हैं, तो क्या सबको मिल सकते हैं 500 के नोट? इज इट पॉसिबल टू सर्व ऑल 10 कस्टमर्स who have preferred 500 rupees notes as their preference, a preferred denomination? अगर उन्होंने 500 डिनोमिनेशन दिया तो मेरे पास काफी नोट नहीं होने चाहिए 500 रुपीज के?
ये सिर्फ 10 कस्टमर्स को सर्व कर पाया एंड दैट सिंपली मीन्स उसमें से कुछ ही लोगों ने 500 का प्रेफरेंस सेट किया होगा. Is it right? So question is, what is the maximum number of customers? What is the maximum number of customers among these 10 who could have given 500 rupee note as their preference? Is it okay, Rugved? Okay, listen one thing. मुझे एक बात बताओ. What is the minimum number of notes? 500 का प्रेफरेंस जो भी देगा उसको मैक्सिमम कितने नोट मिल सकते हैं? उसको मैक्सिमम 10 नोट मिलेंगे. एटीएम चाहे उसको जैसे भी सर्व करे, एक कस्टमर 500 रुपीज का प्रेफरेंस देगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा 10 नोट्स मिल सकते हैं, 9 भी मिल सकते हैं, बट मिनिमम कितना मिल सकता है? मिनिमम उसको 8 नोट तो जाएंगे ना, एज पर द प्रीवियस क्वेश्चन. इफ यू लुक एट इट, कोई भी कस्टमर 500 का प्रेफरेंस देगा उसको कम से कम 8 नोट्स तो डिस्पेंस करने पड़ेंगे, बिकॉज यही 7 वेज है, इसमें से ही कुछ होगा. यस, मैक्सिमम 8 एंड मिनिमम मैक्सिमम 10 एंड मिनिमम 8. वैसे ही तुम्हें भी समझ में आया ये? ऑल क्लियर? यस. तो अब मुझे बताओ रुग्वेद, तुम ही बताओ खुद से कि अगर ये 10 कस्टमर्स हैं और एटीएम में ज्यादा 500 के नोट है ही नहीं, देयर आर ओनली 50 नोट्स अवेलेबल, तो तुम अगर मैक्सिमम के साथ जाओगे तो 5 into 10, 50 नोट खत्म. तो ये तो 5 कस्टमर्स को तुम सर्व कर सकते हो, या फिर तुम ऐसे ट्राई करो कि 8 ही पर कस्टमर 8 नोट्स देते हैं, तो 8 6 48 नोट्स खत्म हो जाएंगे. अब हमें पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर चाहिए, तो हम ये वाला केस नहीं लेंगे. हम क्या ट्राई करेंगे, 10 नोट मत दो, हम ट्राई करेंगे कि एक कस्टमर को जितने कम हो सके उतने कम नोट्स दो. तो हम एक कस्टमर को मिनिमम 8 नोट्स तो देना ही पड़ेगा, मिनिमम ऑफ 8 नोट्स पर कस्टमर. तो 8 into 6 48 होगा. तो क्या मैं कह सकता हूं कि सिर्फ 6 ही लोग होंगे जिन्होंने 500 का प्रेफरेंस दिया होगा. अब देखो, एटीएम ने 10 कस्टमर को सर्व कर लिया, दैट सिंपली मींस कि नोट की कमी नहीं पड़ी. बचे हुए 4 लोगों ने क्या किया होगा, 200 के 100 का प्रेफरेंस दिया होगा. ऑल क्लियर? 5, कम से कम 5 ही कस्टमर्स को वो सर्व करेगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स कितना आएगा? 6. Hopefully all of you understood that. Done. Vedai, Rugved, all clear, guys? Yes, let's move to the next one. Chalo, speed up now. Now for the next question we have answer options as well. Chalo, try it properly. एंड इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली तुम्हें टैकल करते आने चाहिए. एंड इट एक्चुअली डू नॉट नीड प्रैक्टिस और समथिंग, इट इज मोर ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. एंड इफ यू think logically proper, you know, correct, you means you comprehend the information correctly and think logically, definitely you'll be able to tackle such type of questions. And recent CAT papers में you'll find every year इस टाइप का कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एक सेट आया हुआ है हर बार. And it's not lengthy at all, it's so simple. Let's try for this one. What is the maximum number of customers that an ATM can serve with a stock of 50 500 rupees notes and a sufficient number of notes of other denomination if all the customers are to be served with at most 20 notes per withdrawal? तो ये पूरे क्वेश्चन में रुग्वेद वैदई, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस. अगर तुम्हें ये तो पता है हमें कि 50 नोट है 500 के, नंबर ऑफ कस्टमर्स ये सर्व कर पाएगा. कंडीशन अभी क्या है, देखो कस्टमर प्रेफरेंस किसका दे रहा है ये हमें नहीं पता,
तो अज्यूम करो कि बाकी सफिशिएंट नंबर ऑफ नोट से बाकी डिनोमिनेशन के, मतलब 100 के 200 के सफिशिएंट नोट है, तो तुम ऐसा मान के चलो जो भी कस्टमर आ रहा है वो 100 या 200 का प्रेफरेंस दे रहा है। आर यू क्लियर अबाउट इट? देयर इज नो कंडीशन कि वो 500 का प्रेफरेंस दे रहा है। कोई भी कस्टमर आ रहा है, हो सकता है वो 100 200 प्रेफरेंस देते जा रहा है अपना, क्योंकि वो सफिशिएंट नंबर ऑफ नोट्स है, सो दैट हमें ये मिलेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स जो सर्व करना है वो हमें ढूंढना है। बट द कंडीशन इज, ऐसे नहीं होगा कि 100 का प्रेफरेंस दिया तो तुम उसको 100 के 50 नोट दे दो, ऐसे नहीं चलेगा। द कंडीशन इज कस्टमर को 20 नोट से 20 नोट्स से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। दैट सिंपली मीन्स तुम 100 के प्रेफरेंस देने वाले को पूरे 100 के नहीं दे सकते हो। यहाँ पे we have to keep the number of total notes should be less than 20, तो तुम्हें कुछ 500 के इंक्लूड करने पड़ेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये एटीएम 500 के नोट्स खत्म हो जाएंगे कुछ देर बाद। तो पहले तो ये समझो कि मिनिमम कितने 500 के नोट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे हमें। अगर कस्टमर को 20 से ज्यादा नोट्स नहीं देने हैं, उसका प्रेफरेंस 100 200 है मान के चलो तो भी चलेगा। This is nothing related to preference of the customer, it is just related to the maximum number of customers that can be served. All clear? ऋग्वेद, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया एग्जैक्टली यहाँ पे करना क्या है? Yes or no? यस, ओके। सो मुझे एक बात बताओ, एटमोस्ट 20 नोट्स ही अगर तुम मुझे दे सकते हो, तो एक चीज समझो, अगर मैं 20 नोट्स में 20 नोट सारे 100 रुपीज के लूँ तो सिर्फ 2000 रुपीज होते हैं। अगर मैं 20 नोट्स 200 रुपीज के लेना शुरू करूं तो मेरे 4000 रुपीज हो जाते हैं। अभी भी मेरा कुछ 5000 तो हो नहीं रहा है, 4000 सॉरी, तो 4000 या तो 2000 हो रहा है। मतलब अगर मुझे 5000 कंप्लीट करना है तो एक दो तो 500 के रखने पड़ेंगे ना, राइट? तो हम ट्राई करते हैं कि एक नोट 500 का लेते हैं, मीन्स हम ट्राई करते हैं कि ये जो 50 का स्टॉक है इसको खत्म नहीं करना है। हम ट्राई करते हैं कि 500 का एक आधा ही नोट रखते हैं, राइट? लेट्स से 500 का वन नोट अगर भी रखता हूं मैं तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि फिर 4500 रुपीज के लिए मुझे कम से कम 22 नोट्स लगेंगे। 200 के भी लूंगा तो इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे 500 के मिनिमम 2 नोट्स तो लगेंगे, 2 भी लेता हूं तो भी प्रॉब्लम है, फिर और 200 के 20 नोट लगेंगे, 200 के भी लेते तो भी 22 नोट्स हो रहा है। Rugved, what is the minimum number of notes that you should include so that ये कोई भी कस्टमर को सर्व करना है जिसने 500 का प्रेफरेंस नहीं दिया है, जिसने 100 200 का प्रेफरेंस दिया होगा, ऐसे ही कस्टमर्स हम सर्व करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो ज्यादा सर्व हो पाएंगे। द ओनली कंडीशन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व होने चाहिए। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये नोट्स काफी सारे हैं, तो हम 100 200 वाले प्रेफरेंस वाले कस्टमर्स को ही सर्व करेंगे। ऑल क्लियर? ओके, नॉट मोर देन 20, दैट सिंपली मीन्स अगर मुझे 500 के 3 नोट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। देखो 500 का एक नोट इंक्लूड करके तो नहीं होने वाला है, 500 के 2 नोट भी इंक्लूड कर लेता हूं मैं तो भी मुझे 4000 रुपीज तो बचे हुए डिनोमिनेशन से तो नहीं आ सकता है ना। 20 इंटू 200 करेंगे तो यस, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। सो 500 के 3 नोट्स अगर मैं लेता हूं तो फिर मेरे पास चॉइस है कि मैं 200 के थोड़े से नोट लेता हूं, 17 और 2 34 हो गया, और फिर भी एक 100 का नोट लगेगा ही लगेगा। इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि फिर अभी भी ये 17 + 1 + 3 बेसिकली अभी भी कुछ हो नहीं पा रहा है। मतलब मैं 3 नोट भी लूंगा ना ऋग्वेद 500 के, तो भी मैं 20 नोट्स के अंदर तो सर्व ही नहीं कर पाऊंगा। ऑल क्लियर? तो क्या समझ में आया? हमें 500 के मिनिमम कितने नोट लेने पड़ेंगे? 500 के मिनिमम 4 नोट तो लगेंगे।
राइट। तो ये अपने 2000 रुपीज हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो 3000 रुपये बचे हैं उसमें तुम 200 रुपीज के 15 नोट ले लो, उसके 3000 रुपये हो गए। टोटल 5000 हो सकता है। एंड सिंपली मैंने कितने नोट्स यूज किए? 19 नोट्स यूज किए, फिर भी 19 नोट्स लग रहे हैं, राइट, विच इज नॉट मोर देन 20। ऑल क्लियर? अंडरस्टूड दिस? मतलब क्लियर बात ये हो रही है यहाँ पे, अगर तुम्हें 20 नोट से ज्यादा देना नहीं है तो हर कस्टमर को कम से कम 4 नोट तो देना पड़ेगा। और अपने पास सिर्फ 50 का ही स्टॉक है, तो 50 नोट्स को तुम डिवाइड कर दो, पर कस्टमर 4 नोट्स, तो कितने कस्टमर सर्व हो सकते हैं? 12.5 नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन नॉट बी इन पॉइंट, तो इंटीजर वैल्यू हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे 12 कस्टमर्स। ऋग्वेद समझा ये तुम्हें? क्या हो गया? 3 का आंसर दिया तुमने, मिनिमम 3 में कैसे होगा? देखो ऋग्वेद, अगर मैं 3 नोट्स लूंगा ना तो ये सिर्फ 1500 रुपए हुए। अब मुझे और 3500 रुपए लेने हैं। 3500 रुपए लेने के लिए मुझे कम से कम 17 नोट्स लगेंगे 200 के, फिर भी 100 का कम पड़ेगा, एक और नोट लगेगा 100 का। तो कहां पे हुआ ये? देखो 17 और 3 20 और एक 21 नोट्स नहीं हो गए ये? ऑल क्लियर? 3 इज नॉट पॉसिबल, 4 मिनिमम रखना ही पड़ेगा। Done? Chalo, one more question on this. Try for this. What is the number of 500 rupees notes required to serve 50 customers with 500 rupees notes as their preference and 50 customers with 100 rupee notes as their preference if the total number of notes to be dispensed is the smallest possible? अब क्या करना है सुनो, कुछ कस्टमर्स है 50 कस्टमर्स, उन्होंने 500 का प्रेफरेंस दिया, और 50 कस्टमर्स हैं उन्होंने 100 का प्रेफरेंस दिया। अब ये दो सिचुएशन है। पहले एक चीज काम करते हैं, एक सिर्फ फोकस ऑन जस्ट वन पॉइंट। 50 customers with 500 rupees preference and number of notes to be dispensed is the smallest। मतलब मुझे अगर उनको कम से कम नोट देना है तो सीधी सीधी बात है, मैं 500 रुपए के 10 नोट दे देता हूँ एक कस्टमर को। मिनिमम तो 10 ही दे सकते हैं ना, 10 से कम क्या दोगे? सारे 500 के दे दो। ऑल क्लियर? हो गया ये ट्रांजेक्शन 5000 से। मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स 10 ही हो सकता है, 500 जिसका प्रेफरेंस है उसके लिए। तो ऐसे 50 कस्टमर्स हैं, 50 कस्टमर्स को अगर मैं 10 नोट्स ईच दूंगा तो एटलीस्ट मेरे पास 500 नोट्स का स्टॉक तो लगेगा। ऑल क्लियर? To serve customers with 500 rupees as their preference and they should be given the minimum number of notes possible. All clear? ये पार्ट समझ में आ गया? यस। एंड अभी दूसरे कस्टमर्स है 50 कस्टमर्स। Okay, Rugved, listen. Just focus on this. 500 rupees notes required to what is the number of 500 rupees notes required to serve 50 customers with 500 rupees notes as their preference and 50 customers with 100 rupees notes as their preference? ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। मैं सिर्फ पार्ट 1 की बात कर रहा हूं। इज दैट ओके? 50 customers with 500 rupees as their notes as their preference if ये कंडीशन पढ़ो अभी आगे, टोटल नंबर ऑफ नोट्स डिस्पेंस is
द स्मॉलेस्ट पॉसिबल, मतलब यहाँ पे भी नंबर ऑफ नोट्स स्मॉलेस्ट होना चाहिए, यहाँ पे भी नंबर ऑफ नोट्स होना। अब मुझे एक बात बताओ, जिन्होंने 500 रुपए का प्रेफरेंस दिया है उनको तुम्हें स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ नोट्स कितना हुआ? 10 नोट्स हो गया। कम से कम नोट में खत्म करना है तो सीधा सीधा 10 नोट दे दो 500 500 के, तो 5000 रुपए हो गया। यस, अब ऐसे 50 कस्टमर है, ऐसे 50 कस्टमर्स है, इंटू 50 कस्टमर्स, तो क्या मुझे 500 नोट्स का स्टॉक लगेगा इनको सर्व करने के लिए प्रॉपरली? यस और नो? इज दैट ओके? यस। एंड अभी आते हैं सेकेंड केस पे। अब ये लोग हैं, इन्होंने 100 रुपीज का प्रेफरेंस दिया। देखो ऋग्वेद, इन्होंने प्रेफरेंस तो 100 का दिया, बट हमें ऐसे नहीं करना है कि इनको सारे 100 के नोट दे दो। हमें क्या करना है कि इनको भी कम से कम नोट में देना है। अगर इनको कम से कम नोट्स देना है, मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स रखना है, तो इनको भी हम ट्राई करेंगे कि इनको भी 500 के नोट ही दे दो, खत्म करो। और नंबर ऑफ नोट्स जितना हो सके उतना कम रखते हैं। द नंबर ऑफ नोट्स डिस्पेंस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल। जितना कम हो सके उतना कम करना है, तो सीधा सीधा 500 के 8 नोट दे दो, 4000 रुपीज हो जाता है। और फिर जो उन्होंने प्रेफरेंस दिया 100 का, उसके 10 नोट दे दो, सो दैट उनको जो चाहिए उसके ज्यादा नोट्स भी मिल गए। 10 is greater than 8, that's the simple trial, right? ऑल क्लियर ऋग्वेद? ये तुम्हें समझा? देखो अगर तुम ट्राई करोगे इनको, देखो इनको मैं 10 नोट तो 500 के नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उनका प्रेफरेंस तो 100 है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इनको 9 नोट्स दूंगा 500 के, तो भी 4500 होगा। फिर उनको 100 के 5 नोट में नहीं चलेगा, उनको जो प्रेफरेंस दिया वो ज्यादा मिलने चाहिए। तो एक काम करते हैं, 500 के 8 नोट्स देते हैं, 4000 हो गया। मतलब मिनिमम नोट्स में अगर इनका काम करना है सच दैट उनका जो प्रिफर्ड डिनोमिनेशन है वो ज्यादा मिलने चाहिए। अदर डिनोमिनेशन उनके लिए 500 हो गया, वो हमने 8 ही दिए। ऑल क्लियर? तो अभी मुझे बताओ, ये लोगों को 8 नोट्स देने हैं एंड देर आर सच 50 कस्टमर्स, सो 50 into 8, I'll still need 400 notes in stock to do this. So what is the maximum number of stocks, number of 500 rupees note required? तो आंसर क्या है इसका? 900, which is answer option D, 500 plus 400. This was bit logical. Are you getting it? समझ में आ गया ये? It takes time to explain this question type, but it's a really interesting one, and I will suggest once you should try it at your own, even if you understand this question. एक बार तुम खुद से सेशन के बाद एक बार खुद से चेक करके देखो क्या तुम्हें चारों क्वेश्चन समझ में आए। ऑल क्लियर? डन? Yes, but definitely it's not a lengthy question to do in exam. It's a short question type. You'll definitely save on time if you understand it properly, and अगर तुम proper logically possibility सोच पाते हो and exactly question समझना, it's really challenging here. चलो let's move to the next thing, guys. We have one LR set. Again यहाँ पे थोड़ा सा observation बहुत important है, so be with me for next 15 minutes. We'll try to finish it with the explanation and everything. So be with me and try to read the information at your own for next 2-3 minutes. तुम्हारा काम ज्यादा रहेगा, तुम्हें quickly ये पढ़ते जाना है, and I'm quite sure once you understand, you start understanding this part, तुम इसके आगे खुद से, जब मैं solve कर रहा हूँ तुम खुद से ही तुम्हारे answers आते जाएंगे. But first of all try to interpret the information at your own. Do not give up in between. A company administers a written test comprising 3 sections of 20 marks each. कौन से सेक्शन से? DI, written English and एक general awareness.
तो एक टेस्ट एडमिनिस्टर हो रहा है जहां पे 3 सेक्शन है, हर सेक्शन 20 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स तो 60 होने चाहिए क्योंकि 3 सेक्शंस है, 20 20 20। बट एक चीज यहाँ पे अलग है, कंपोजिट स्कोर जो है ना वो आउट ऑफ 80 निकलता है। एंड व्हाई दिस इज आउट ऑफ 80? बिकॉज इज कैलकुलेटेड, दैट कंपोजिट स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय डबलिंग हर मार्क्स इन डीआई। तो डीआई सेक्शन के मार्क्स जो है वो डबल कंसिडर होते हैं। दैट्स द की पॉइंट। ये आउट ऑफ 80 क्यों आ रहा है? ये है तो 20 का, बट इसके मार्क्स डबल कंसिडर हो जाएंगे, मतलब ये 40 का हो गया समझो। एंड रिटन इंग्लिश 20 एंड जनरल अवेयरनेस 20, दिस इज व्हाट इट इज। 20 मार्क्स का ही सेक्शन है, बट जितने भी मार्क्स करोगे उसका डबल मार्किंग होगा डीआई सेक्शन के लिए। ऑल क्लियर? इज दैट क्लियर? वैदेही, ऋग्वेद, ऑल क्लियर गाइस? ओके, डीआई के मार्क्स डबल होंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज द कैंडिडेट्स हु कंपोजिट स्कोर तो नॉर्मल अपन ऐड करेंगे तीनों सेक्शन का, सिर्फ डीआई का डबल। ओके, कैंडिडेट हु स्कोर लेस देन 70% मार्क्स इन 2 और मोर सब्जेक्ट, 2 या 2 सेक्शन से, नॉट सब्जेक्ट, सेक्शंस। देखो यहाँ पे 3 ही सेक्शन है, एक सेक्शन में अगर 70% से नीचे जाएगा तो चल जाएगा, 2 सेक्शन में या 3 सेक्शन में अगर 70% से नीचे स्कोर किया तो सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? And from among the rest, the 4 with the highest composite score are recruited. 4 or less candidate, if 4 or less candidate qualify, अगर 4 लोगों ने qualify ही नहीं किया, 2 या 3 लोगों ने qualify किया, तो 3 को ही recruit किया जाएगा। जो disqualify हो रहा है उसको recruit नहीं होगा। normal process of recruitment, right? Then 10 candidates appeared for the written test and their marks in the test are given in the table. Some of the marks are missing, but the following facts are known. This is the part of the information which we read. Now we can move to the next slide, and the half of information we have this. All clear up till now? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ओके ऋषिक, तो तुम्हें पहला इंफॉर्मेशन समझ में आ गया। नाउ दिस आर द फैक्ट्स वी नो। शैल आई टेक यू थ्रू द क्वेश्चंस गाइस? चलो एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ सबको। यहाँ पे तुम्हें इंफॉर्मेशन तो समझ में आ रहा होगा तुम्हें। एग्जैक्टली अपने पास 6 क्लूज है। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, अभी ये वैल्यूज हमें पता नहीं है, ये हमें सोचना पड़ेगा क्लूज को यूज करके। दिस ब्लैंक्स की जगह पे क्या आएगा? And let's have a look at the questions. So first question is which of the following statement must be true? Definitely हम ऐसे तो पढ़ के नहीं बता सकते। We have to connect the clues, get the information done, वो fill in the blanks fill करने पड़ेंगे जहाँ जहाँ पे डेटा नहीं है। Then only you'll be able to solve these questions. Which of the statement must be false? Then if all the candidates except Ajay and Danish had the different marks in DI, Bala's composite score was less than Chetna's composite score. Then what is the maximum marks Bala could have scored in DI? So the main idea to get you through the questions is just questions are not so straightforward. Okay, so you cannot even think about solving this without getting this information done. जब तक तुम्हें ये मिलता नहीं है तब तक हम आगे नहीं जा सकते। All clear? ऋषिक, ऋग्वेद, all of you with me, both of you with me guys? Okay, one last time before we start solving this, what I can say guys, क्या करना है तुम्हें? DI के मार्क्स डबल करना है, ये की पॉइंट है। और 2 सेक्शन या 3 सेक्शन में अगर 70% से कम मार्क्स लिए तो वो डिस्क्वालीफाई होगा, ये एक की पॉइंट है। आई विल जस्ट राइट द की पॉइंट ट्वाइस। डबल द मार्क्स ऑफ DI,
70% or less than in 2 or more than 2 sections is directly disqualify, and बाकी सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तो सबके जिनके कंपोजिट स्कोर, तुम किसका कंपोजिट स्कोर बता सकते हो? और ऋग्वेद एंड ऋषिक, सो गाइस लेट मी नो। व्हाट हैपेंड ऋषिक? दिस इज द सेकेंड सेट फॉर टुडे सेशन। टोटली हम 3 सेट आज करने वाले हैं। 1 is done, this is the second one, and hopefully you are solving it at your own. What about others? कोई मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द चेतना's कंपोजिट स्कोर? सो लेट मी नो कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेतना का कंपोजिट स्कोर बताओ मुझे क्या है। ऋषिक, द थिंग इज हमें सिर्फ इतना नहीं ढूंढना है कि कौन क्वालिफाई कर रहा है, हमें एग्जैक्टली सबके स्कोर्स चाहिए। बिकॉज द क्वेश्चन इज लाइक, लुक एट द क्वेश्चन, Jati's composite score was more than Danish, then Indu scored less than Chetna in DI। तो हमें ये सारे fill in the blanks fill करने होंगे पहले तो, जो भी blanks है। What is the composite score for this? क्या 35? क्या था, कैसे लाया तुमने 35? 4 plus 12 16, 16 plus 19 35। Is it 35? ये तुमने पढ़ा अभी तक? क्या डिसाइड हुआ था ऋग्वेद, ऋषिक? Okay, Lakshmi, you want important topic for DILR? In DILR सिर्फ स्ट्रक्चर्ड अगर मैं बात करूँ तो मेनली तुम स्ट्रक्चर्ड अगर टॉपिक्स वाइज जाना चाहते हो तो डेटा इंटरप्रिटेशन में जा सकते हो, और टेबल्स, पाई चार्ट, मल्टी लेवल पाई चार्ट, रडार चार्ट, ये सारे टाइप के ग्राफ्स को तुम्हें इजीली कर मींस इंटरप्रेट करते आना चाहिए। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। देन सेट थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन सेट थ्योरी पे काफी बार कैट में क्वेश्चंस आए हैं, 3 सेट्स, 2 सेट्स, इवन 4 सेट्स पे भी क्वेश्चन आए हैं। ओके, एंड बाकी अगर तुम लॉजिकल रीजनिंग की बात करो तो इट्स मोर ऑफ मिसलेनियस एंड मिक्स थिंग, इट हैज नथिंग टू डू विद द टॉपिक। मेनली एलआर के टॉपिक्स अगर मैं ब्रॉडली करूँ तो अरेंजमेंट तुम कर सकते हो। इवन लास्ट ईयर कोडिंग डिकोडिंग पे भी क्वेश्चन आया था, दैट वाज रियली ट्रिकी। एलआर इज मोर ऑफ तुम जितने डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेट्स प्रैक्टिस कर सको उतने करो। ओके, हाँ ऋषिक 54 आया पक्का? ओके ऋषिक, क्या करना था तुम्हें? 19 का डबल कर देना था। ये हमारे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, ये अपने मन से कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। एवरीथिंग इज गिवन हियर इन द इंफॉर्मेशन, राइट? इससे इजी क्या हो सकता है? जो भी कुछ करना है सारा तुम्हें डायरेक्शंस में लिख के दिया है, बस प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड करना है, केयरफुली पढ़ना है और सॉल्व करना है, दैट्स इट। यहाँ पे कोई तुम्हें फॉर्मूला पता होने की जरूरत नहीं है। 38 plus 4, 42 plus 12, this composite score is 54, right? Perfect guys, चलो क्विकली स्पीड अप। ये सबको समझ में आया होगा होपफुली, ये कंपोजिट स्कोर कैसे निकाला। और बार बार मैं यहाँ पे अभी लिखने वाला नहीं हूँ, एवरीवेयर बाकी जो भी कैंडिडेट्स है 10 कैंडिडेट, सबके लिए यही रूल फॉलो होगा जो हमने चेतना के लिए फॉलो किया। ऑल क्लियर? टू गेट द कंपोजिट स्कोर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है, अगर कोई भूल गया होगा तो लेट मी क्विकली रिपीट। 70% से कम मार्क्स अगर 2 सेक्शंस में आते हैं तो वो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई होगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्लूज क्विकली। No two candidate had the same composite score. Ajay was unique high in written English। तो अजय का written English में unique highest marks थे। highest मतलब डेफिनेटली यहाँ पे 18 मार्क्स है, इसको 18 है तो 18 से ज्यादा ही होगा, डेफिनेटली 19 या 20 होगा।
राइट। सोहम, ऋषिक, ऋग्वेद, 1920 समझ में आया कैसे होगा? नहीं ऋषिक, 19 भी हो सकता है 20 भी हो सकता है, तुमने 19 है ये भी डिसाइड कर लिया क्या? Among the four qualified, Geeta had the lowest composite score. Indu was recruited. Then Danish, Hari, Indu had the had scored same marks in GA. Okay, Danish, Harini and Indu. ये मैं XX लिख देता हूं। इन तीनों ने इंग्लिश में सेम मार्क्स स्कोर किए। Is that clear, Soham? What about you, ऋग्वेद? क्या हो रहा है? सॉल्व हो रहा है आगे कि नहीं हो रहा है? Which is the important clue? ऋषिक बोलो। ये 19 और 20 कुछ भी हो सकता है ऋषिक, अभी मेरा तो डिसाइड नहीं हुआ। अगर तुमने आगे सॉल्व किया होगा तो फिर वी नीड टू चेक अगर वो 19 है या 20 है। Yes, for TIS also you can practice such questions. Definitely you will get this is for especially a CAT you can say, but definitely it will also help in other MBA entrance exams as well, like TIS you will get similar level of difficulty quite there. Miss this is not the tough question, it is of CAT but it's a moderate level of difficulty. So you can practice such LR questions for TIS as well. Okay guys, let's use the last clue. मैंने fifth clue यहाँ पे लिखा है XXX. Now sixth clue says Indu Jatin had both 100% in exactly one section and Jatin's composite score was 10 more than Indu's score. Yes Rugved. अच्छा, how 19 and 20? यहाँ पे क्या लिखा था Rugved? Ajay was unique highest. Clue, look at the clue number 2. रिटन इंग्लिश, WE इज रिटन इंग्लिश। ओके, अजय वॉज यूनिक हाईएस्ट। यूनिक हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? जितने भी 10 लोग हैं उसमें से टॉप पे वो था और कोई भी उसके जितना स्कोर नहीं था। तो यहाँ पे हाईएस्ट मार्क ईस्टर के मार्क्स देखो कितने हैं। ईस्टर के 18 है, अजय अगर हाईएस्ट था तो उसका 19 या 20 ही होगा ना। ऑल क्लियर? ओके गाइज, लास्ट क्लू इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इंदु एंड जतिन दोनों को 100% मिला है एक सेक्शन में। अब जतिन ने यहाँ पे 16 मार्क्स लाए, यहाँ पे 14 मार्क्स लाए। और ऋग्वेद, लुक एट द लास्ट क्लू। ऋषिक, लुक एट द लास्ट पॉइंट। सिक्स्थ क्लू इज इंपॉर्टेंट। जतिन का यहाँ का स्कोर 20 होना चाहिए। एम आई करेक्ट? एंड जतिन का कंपोजिट स्कोर क्या होना चाहिए फिर ऋग्वेद? इसका डबल कर देते हैं, 20 का डबल। क्योंकि उसने एक सब्जेक्ट में तो 100% लाया है, तो उसने ये दो में नहीं लाया, तो एक सेक्शन में 100 लाया तो इधर ही होगा। 40 और ये 30, इसका हो गया कंपोजिट स्कोर 70। और अच्छा, फिर इंदु का उससे 10 कम होगा क्योंकि जतिन का 10 ज्यादा है, मतलब इंदु का 60 होगा। और इंदु ने कहीं ना कहीं तो एक सब्जेक्ट में तो उसने 100 लाया है। 100% मतलब या तो यहाँ पे 20 लाया है या तो यहाँ पे 20 लाया है। दोनों जगह पे नहीं, दोनों में से एक जगह पे। कहाँ पे 20 लाया होगा इंदु ने, बता सकता है कोई मुझे यहाँ पे? चलो, आई विल गिव यू 30 सेकेंड टू थिंक। टेल मी, इंदु का DI का स्क्वायर 20 है या फिर जनरल अवेयरनेस का स्कोर 20 है? कैन वी डिसाइड इट? उसका कंपोजिट स्कोर 60 आना चाहिए। Anyone who is able to decide?
क्योंकि इंदु ने भी एक जगह पे 20 स्कोर तो किया है, 100% मतलब 20। ओके ऋग्वेद, अगर इंदु ने डीआई में 20 मार्क्स लिए हैं तो फिर मुझे एक बताओ, डीआई का डबल स्कोर होता है 20 और 2 हो गया 40, 40 प्लस 8 48। तुम्हारा कहना है कि जनरल अवेयरनेस में उसने सिर्फ 12 मार्क्स लाए। इज दैट यू मीन टू से? व्हाट अबाउट यू ऋषिक? एक बार वापस सोचो ऋग्वेद। लुक एट द फोर्थ क्लू, क्या लिखा है यहाँ पे? इंदु वॉज रिक्रूटेड। अच्छा, अभी ये कुछ लोग है ना, ये भूल गए हैं इंफॉर्मेशन, बीच में से ही तुम भूल गए। इंदु रिक्रूट हुई होगी तो वो क्वालिफाई भी हुई होगी। रिक्रूट अगर हुई है, वो हायर किया है उसको, तो डेफिनेटली वो क्वालिफाई किया होगा उसने कि नहीं किया होगा। नहीं, सेम सेक्शन कहां पे लिखा है? बोथ स्कोर्ड 100% इन एग्जैक्टली वन सेक्शन बोला है। एग्जैक्टली वन का मतलब तीनों में से एक जगह पे उनका 100 है, बाकी जगह पे 100% से कम है। सेम नहीं लिखा है। अच्छा, एक चीज और समझो, यहां पे 70% स्कोर कितना होता है? 70% ऑफ 20 बताओ कितना होता है? 14 मार्क्स। तुम बोल रहे हो कि इंदु ने यहाँ पे 8 मार्क्स लाए, इधर 12 मार्क्स लाए, तो वो रिक्रूट हो पाएगी? हमारा कंडीशन क्या था, भूल गए सब लोग इधर? 70% अगर दो या दो सेक्शन से ज्यादा सेक्शंस में, 2 या 3 सेक्शन में अगर 70% से नीचे गए तो सीधा डिस्क्वालीफाई हो रहा है। तो इंदु तो ऐसे डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएंगी। इधर इधर 8 मार्क्स लाए, इधर 12 मार्क्स लाए, और स्टार्टिंग में 20 मार्क्स लाए, एक जगह पे 20 लाए, इधर डिस्क्वालीफाई हो गए। राइट, दैट सिंपली मीन्स इंदु का जो 20 मार्क्स है ना, वो डीआई में नहीं आ सकता है, बिकॉज उसने क्वालिफाई किया है, शी वॉज रिक्रूटेड। श्योरली इट मीन्स उसने जनरल अवेयरनेस में 20 मार्क्स लाए हैं, और यहाँ पे फिर 20 और 8 मिला के 28 होता है। बचे हुए 32 उसने डीआई में लाए। 32 मतलब 16 ही लाने पड़ेंगे, क्योंकि 16 का डबल होता है 32। तो बेसिकली इंदु के डीआई के मार्क्स है 16, और जनरल अवेयरनेस के मार्क्स है 20। आर यू क्लियर अबाउट इट ऋग्वेद? समझ में आ रहा है तुम्हें ये? गाइस, दोज आर वाचिंग द सेशन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? यस और नो? ऑल क्लियर? यस। अब मुझे बताओ, दानिश, हरिणी, इंदु, इन सबके तीनों के स्कोर सेम है, तो यहां पे 20 होगा, ये भी 20 है। राइट, सो दिस इज व्हाट वी गॉट अप टिल नाउ। अभी तुम थोड़े कंपोजिट स्कोर निकाल सकते हो, और भी बाकी लोगों के कंपोजिट स्कोर निकालते हैं। चलो, ये 54 आया, 60 आया, इंदु के लिए 60 आया, जतिन के लिए 70 आया, चेतना के लिए 54 है। दानिश का कंपोजिट स्कोर अभी हम निकाल सकते हैं, 8 2 16 प्लस 1 15, 16 प्लस 15 इज 31 प्लस 20 विच इज 51। देन ईस्टर के लिए कंपोजिट स्कोर निकालते हैं, 12 डबल इज 24 प्लस 16 40, इट्स 58। और सबके कंपोजिट स्कोर अलग थे, दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट क्लू। ओके, ये हुए कंपोजिट स्कोर। मैं यहां पे सारे कंपोजिट स्कोर लिख रहा हूं। ऑल क्लियर ऋग्वेद? और 15 डबल इज 30 40, इसका लिए फलक के लिए 47 आएगा।
these many composite square we had, we can have right now, till right now. Okay, then next let's move to the next thing. अभी ये ट्राई करते हैं ये 19 है या 20 है, कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि सारे कंपोजिट स्कोर जो है ना वो सारे डिफरेंट है. नो टू कैंडिडेट्स हैड द सेम कंपोजिट स्कोर. कोई भी दो कैंडिडेट के स्कोर सेम नहीं थे, कंपोजिट स्कोर. ओके, so that simply means if I do this 8 doubles is 16, 16, 16, 32. अगर मैं यहां पे 20 लेता हूं, अगर मैं यहां पे 19 लेता हूं, चलो 19 लेते हैं. ऋग्वेद कितना होगा 19 लिया तो स्कोर इसका 32 और 19 51 नहीं हो जाएगा? बट 51 तो ऑलरेडी दानिश का स्कोर आ गया है. Yes, it cannot be 51. That means it's not 19. It can be just only value possible is 20. And अजय का composite score होगा 52. Right, correct. So up till now ये सब चीजें हो गई. अभी डिसाइड करते हैं इधर के वैल्यूज. अभी भी हमें ये वैल्यू बाला का स्कोर DI का नहीं पता चला. Then I'll just remove this part now. ये कैसे आया सबको याद है, into 2 मैं हटा देता हूँ so that it won't create any confusion. Then ये हमें नहीं पता. रिटर्न इंग्लिश का स्कोर गीता का एंड रिटर्न इंग्लिश का स्कोर हरिणी का. ऑल क्लियर? ओके, सो आफ्टर दिस टेल मी क्या क्या पॉसिबल स्कोर हो सकते हैं इनके. कौन कौन रिक्रूट हुआ है पहले ये बताओ मुझे. व्हाट डू यू थिंक ऋग्वेद, कौन रिक्रूट हुआ होगा? इंदु रिक्रूट हुई है. इंदु का स्कोर हमें पता चला है, इंदु 60 है. अब जो जिसका कंपोजिट स्कोर 60 है वो भी रिक्रूट हुई, तो 70 वाला तो रिक्रूट हुआ ही होगा, जतिन. तो मैं यहाँ पे रिक्रूट हुए लोगों के लिए लिखता हूं रिक्रूटेड. Among the 4 recruited, गीता had the lowest composite score. गीता भी रिक्रूट हुई है. गीता का सबसे कम स्कोर था और वो रिक्रूट हुई. What is the conclusion you can draw? क्या लगता है कौन और रिक्रूट हुआ होगा? ऋग्वेद, तुम मुझे गीता का कंपोजिट स्कोर बता सकते हो? गीता के लिए कंपोजिट स्कोर क्या होगा? एनीवन हु कैन टेल मी गीता's कंपोजिट स्कोर? एक चीज समझो गाइस, दानिश को देखो. दानिश का कंपोजिट स्कोर 51 है और वो क्वालिफाई भी कर रहा है, बट वो रिक्रूट नहीं हुआ होगा. ईस्टर का कंपोजिट स्कोर, ईस्टर और दानिश अगर तुम देखोगे ना तो ईस्टर का 58 है. मतलब श्योरली देखो 70 वाला रिक्रूट हुआ, 60 वाला रिक्रूट हुआ, ये 58 वाले के रिक्रूट होने के ज्यादा चांसेस है. एक ईस्टर रिक्रूट हुआ होगा और एक गीता रिक्रूट हुई होगी. और ये दानिश क्यों नहीं हुआ होगा? बिकॉज गीता का स्कोर 51 से ज्यादा होगा. 51 से ज्यादा 52 नहीं हो सकता है, 53 नहीं हो सकता है, 51 नहीं हो सकता है, 52 नहीं हो सकता है, 53 हो सकता है. या 54 तो नहीं हो सकता है, 55 वगैरह हो सकता है, 56 और 57 ऐसे कुछ लाना पड़ेगा उसका कंपोजिट स्कोर. राइट ऋग्वेद, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या ये? 14 डबल इज 28, 28 प्लस 6, 28 प्लस 6 उसका अभी तक सिर्फ हो रहा है 34. अब मैं यहाँ पे 20 मार्क्स भी ऐड कर दूं तो भी ये 54 तक ही पहुंच पा रही है. तो 55, 56, 57 तो होने का कोई चांस ही नहीं है. गीता मस्ट हैव स्कोर्ड 20 तो नहीं किया होगा, 19 किया होगा, तभी जाके उसका स्कोर पहुंचेगा 53 पे.
कंपोजिट स्कोर गीता का 53 पहुंचेगा और तब हम बोल सकते हैं गीता इज क्वालिफाइड विद द लोवेस्ट कंपोजिट स्कोर। एंड एक फिर गीता का 53 से ऊपर तो जा नहीं सकता है, तो एक ईस्टर क्वालिफाई होगा एंड दानिश क्यों नहीं हुआ क्वालिफाई होके भी, बट वो गीता से उसका कंपोजिट स्कोर कम है। इज दैट क्लियर ऋग्वेद, तुम्हें ये समझ में आ रहा है? इंदु, जतिन, ईस्टर और गीता ने यहाँ पे 19 मार्क्स लाए होंगे एंड दैट्स व्हाई गीता इज क्वालिफाइड हियर एंड गीता इज द लास्ट पर्सन हु क्वालिफाइड, who recruited actually. Among 4 recruited, Geeta had the lowest composite score. Is there any doubt in this? Are you clear about it? Yes. So that should be okay. After that, जो बाकी चीजें हैं यहाँ पे हमें हरिणी का स्कोर पता नहीं चला और बाकी बाला का एक स्कोर नहीं पता। ये 2 वैल्यूज छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज हमें पता चल चुके हैं। So now let's move to the question and try to do the questions. Okay, so because questions इतने straightforward नहीं है, we have to use the possibilities as well. So look at the first question. Okay, which of the following statement must be true? Jatin composite score was 10 more than that of Danish. Is it right? जतिन का स्कोर 70 है, दानिश का 51 है, तो 10 का डिफरेंस नहीं है, 19 का डिफरेंस है। दिस इज नॉट ट्रू। इंदु स्कोर लेस देन चेतना इन डीआई। इंदु और चेतना डीआई का स्कोर देखो, इंदु का 16 है एंड चेतना का 19 है, सो डेफिनेटली इंदु इज लेस देन चेतना इन डीआई, दैट इज ट्रू। And Jatin scored more than Indu in GA. General awareness, Jatin scored more than Indu. जतिन का स्कोर GA का 14 है, इंदु का, so this is again not true. Sorry guys, एक गलत हो गया मेरे से। This one is right. Jatin composite score was more, not 10. I forgot. I don't know why I took it 10. Jatin score was just more than Danish. Definitely that is true. Because Jatin तो सबसे highest है. Right, Rugved? Both 1 and 2 is the right answer. Sorry, my mistake. All clear, Rugved? Is there any doubt? नो ऋग्वेद, यहाँ पे आंसर ऑप्शन 1 भी, ये 1 और 2 दोनों भी सही आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे गलती से 10 अज्यूम किया था, दैट वाज नॉट 10, इट वाज जस्ट जतिन स्कोर इज मोर देन दानिश, दैट इज ट्रू ना, जतिन इज हाईएस्ट वन। ऑल क्लियर? ऑप्शन ए क्या है? तो both 1 and 2 is correct, both 1 and 2, 3 is wrong, 1 and 2 is right। तो कौन सा आंसर लगाओगे? यहाँ पे है ना डी, both 1 and 2। is that okay? all clear? Yes, try for this.
Which of the following statement must be false? बाला स्कोर सेम एज जतिन इन डीआई. अब हमें ये चेक करना पड़ेगा जाके. ओके, बाला इक्वल टू जतिन इन डीआई सेक्शन. ओके, सो लेट्स गो एंड क्रॉस चेक इट. बाला का स्कोर कितना है? और सॉरी, बाला का स्कोर नहीं पता. डीआई सेक्शन बाला इक्वल्स टू जतिन. जतिन का स्कोर 20 है, तो क्या बाला का स्कोर यहां पे 20 हुआ तो चलेगा क्या? चलो 20 का डबल करो. 40 और 9 प्लस 11, कंपोजिट स्कोर कितना हो जाएगा बाला का? बोलो, बाला का कंपोजिट स्कोर कितना होगा? 60 हो जाएगा. Is that right? Rugved, is it right? बाला का स्कोर 60 हो जाएगा, बट 60 तो इंदु का स्कोर है, एंड वी नो नो टू कैंडिडेट्स हैड द सेम कंपोजिट स्कोर. किसी भी दो कैंडिडेट के सेम कंपोजिट स्कोर है नहीं, इसका मतलब बाला का स्कोर यहाँ पे 20 नहीं हो सकता है. दैट्स माय कंक्लूजन. सो बाला कैन नॉट बी इक्वल टू जतिन in data interpretation. In DI section, Bala cannot score 20. That's what the conclusion is, right, Rugved? So the question is, which of the following must be false? हमें पहला ही मिल गया. This has to be definitely false. तो हमारा आंसर आ गया, खत्म हो गया. Do not check remaining answer options. It's just answer option A is the answer we are looking for. We were supposed to find which is false. तो हमें फॉल्स मिल गया. ऑल क्लियर? ओके, सो गाइस, आई वांट यू टू आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई इट प्रॉपर्ली. Next one, Rugved, try करो properly. If all the candidates except Ajay and Danish had the different marks in DI, अजय और दानिश को छोड़ के बाकी सबके DI के मार्क्स डिफरेंट है, तो बाला का कंपोजिट स्कोर, एंड वन मोर थिंग, बाला's composite score is less than Chetna, then what is the maximum score Bala could have scored in DI? बाला का DI का स्कोर कितना होगा अगर बाला ने चेतना से कम स्कोर किया है एंड बाकी सबके मार्क्स डिफरेंट है? DI के सारे सबके मार्क्स डिफरेंट है, एंड आई एम क्वाइट श्योर यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर ओन. चलो, होपफुली यू रिमेंबर दैट क्वेश्चन क्या है. बाला का कंपोजिट स्कोर चेतना से कम होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. बाला शुड बी लेस देन चेतना कंपोजिट स्कोर. एट द सेम टाइम DI के मार्क्स किसी के भी सेम नहीं होने चाहिए, सबके DI के मार्क्स डिफरेंट है, सिर्फ अजय और दानिश छोड़ के, क्योंकि उन दोनों के 8-8 हो गए हैं, बाकी सबके डिफरेंट है. आर यू क्लियर अबाउट इट, Rugved? तो पहले तो एक काम करते हैं. चेतना का कंपोजिट स्कोर है 54, तो चेतना का स्कोर है 54. दैट सिंपली मींस बाला का कंपोजिट स्कोर 54 से नीचे होना चाहिए, राइट? 54 से नीचे मतलब 9 प्लस 11 ये 20 होता है. 54 में 20 माइनस कर दे तो 34 होता है. 34 का हाफ 17 मींस बाला का DI का स्कोर जो होगा वो 17 से नीचे होना चाहिए. क्योंकि देखो यहाँ पे 17 अगर लिया तो 17 का डबल होता है 34, और 34 और 20 होता है 54. वो बाला और चेतना इक्वल हो जाएंगे, तो बाला का यहाँ पे 17 तो स्कोर है नहीं. इज दैट क्लियर? It cannot be 17. It is surely less than 17.
एम आई राइट ऋग्वेद? तुम्हें ये समझ में आ रहा है बाला हैज स्कोर्ड लेस देन 17 इन डीआई? यस और नो? ओके सो लेस देन 17 नहीं ऋग्वेद डीआई का 18 कैसे आएगा? ओके तुमने 18 तो नहीं होगा ना? यहाँ के स्कोर देख के मत बताओ, उसका बाला का चेतना से कम भी तो होना चाहिए ना स्कोर। अब 16 हो सकता है, 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, 13 हो सकता है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 16 ऑलरेडी जा चुका है। 16 इंदु ने स्कोर किया है, 14 इसने स्कोर किया है, 15 गया है, 14 गया है, 14 15 16 गॉन। 17 हो नहीं सकता है, 17 18 19 ऊपर जा नहीं सकता है, 16 ऑलरेडी जा चुका है, 15 किसी ने स्कोर कर लिया, 14 कर लिया, तो बाला का मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे हो सकता है 13 एज पर द कंडीशन गिवन, इंक्लूडिंग दिस कंडीशन कि बाला अगर सबने डीआई में डिफरेंट स्कोर किया है तो बाला का स्कोर जाएगा 13 एज पर दिस कंडीशंस। ऑल क्लियर ऋग्वेद? तुम्हें समझ में आ गया अभी? So this one was bit question which requires observation. I can say, I cannot say it's so much tricky. It is more of तुम कितना carefully solve करते हो. So answer is 13. Right, correct. You got it correct, 13. And one more question I want you to try it now, Rugved. Look at this question. If all the candidates score different marks in written English, it is quite similar to the previous. सिर्फ बाला की जगह पे अभी पर्सन जो है वो हरिनी पूछा है हमें. All the candidates score different marks in written English. Then what is the maximum marks Harini could have scored in written English? तो अगर रिटन इंग्लिश में सबने डिफरेंट मार्क्स स्कोर किए हैं तो हरिनी का मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है? चलो बोलो, व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर्ड बाय हरिनी इन रिटन इंग्लिश? दिस इज द क्वेश्चन यू आर सपोज टू आंसर. 18 19 20 तो कैंसिल हो गया. Harini score in written English, it cannot be 20, it cannot be 19, it cannot be 18 because वो जा चुके हैं, सब ने डिफरेंट मार्क्स स्कोर किए. तो 20 गया, 19 गया, 18 भी हो गया, 17 हो सकता है, 17 एक बच रहा है. 17 हो सकता है क्या ऋग्वेद? इज इट पॉसिबल टू हैव 17 ईयर? अब उसके बाद 16 तो नहीं हो सकता, 15 भी नहीं हो सकता, फिर सीधा 14 वगैरह हो सकता है. 17 इज पॉसिबल. एक बार कंपोजिट स्कोर चेक करते हैं. व्हाट विल बी द कंपोजिट स्कोर? हरिनी का कंपोजिट स्कोर कितना आएगा फिर ऋग्वेद? क्योंकि हमें कंपोजिट स्कोर भी तो डिफरेंट आना चाहिए ना उसका. ऐसे तुम सिर्फ इधर के वैल्यूज देख के थोड़ी, हमें सारे कंडीशंस याद होनी चाहिए पहले जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. व्हाट इज 5 डबल 10 प्लस 20 30, ये आ रहा है 47. तो होगा क्या? अरे यहाँ पे 47 ऑलरेडी जा चुका है. फोर्टी सेवन तो फलक का कंपोजिट स्कोर है. नो टू कैंडिडेट हैव द सेम कंपोजिट स्कोर. अरे गेटिंग दिस? यहाँ पे ट्रिकी चीजें क्या होती हैं, ऐसे ही हम मिस्टेक्स कर जाते हैं. सुनो, 17 नहीं हो सकता है. इज दैट राइट?
रुग्वेद तुम्हें समझा 17 क्यों नहीं है? अब उसके बाद 16 और 15 तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो दूसरों ने स्कोर कर दिए हैं। 15 हो चुका है, 16 भी हो गया, तो फिर अब बचता है 14। अगर 14 स्कोर दे दे तो 20 प्लस 10 30 प्लस 14 44 हो सकता है कंपोजिट स्कोर। दिस कुड बी द पॉसिबल वन। तो 14 तक जा सकता है मैक्सिमम। ऑल क्लियर रुग्वेद? समझ में आया कहां पे मिस्टेक हुआ वहां पे? तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 14। A question which requires a lot of concentration, I can say. It's not so simple, but it has to be 14, right? बट रुग्वेद यहाँ पे ये क्वेश्चन में तुमने ऑब्जर्व किया क्या, ये बाला का स्कोर एंड हरिणी का स्कोर जो निकालना था ना, दिस वाज रियली रियली ट्रिकी, बिकॉज तुम पीछे की इंफॉर्मेशन जैसे जैसे तुम भूलते जाओगे यहाँ पे गलती होने के चांसेस है। देन स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस आई कैन से अगर तुमने सॉल्व किया है प्रॉपरली तो इजी थे। लास्ट टू क्वेश्चंस वर यू नीड टू डू विद अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, दैट्स द ओनली थिंग नीडेड। इट्स नॉट कि बिल्कुल टफ थे, बट डेफिनेटली तुम मिस्टेक्स होने के, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस थे यहाँ पे। Okay guys, so let's move to the last set for the day, third set for today. I want you to try. Okay, and this is the set, I will say this is the set you should go for in CAT, means ये last 2018 का था, but इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल करने चाहिए एंड यहाँ पे तुम इजीली स्कोर कर सकते हो if you get such type of question. Simple one, really really simple. परसेंटेज कैलकुलेशंस तुम कैसे करते हो उस पर बहुत डिपेंड करता है, बट तुम जितना लॉजिकली सोच पाओगे उतना केयरफुलनेस एंड अटेंशन देके करोगे तो डेफिनेटली दिस इज द सेट फॉर यू एंड दिस इज द क्विक क्वेश्चन यू कैन से, इट्स नॉट लेंथी एट ऑल. 24 people are part of 3 committee which are to look at research, teaching and administration respectively. No two committee have any member common. तो गाइज अगर तुम सेट थ्योरी के बारे में सोच रहे होंगे तो ये क्वेश्चन पहले सेट थ्योरी का नहीं है, ये समझो. यहाँ पे तीनों टीम्स अलग है, रिसर्च कमिटी अलग है, टीचिंग कमिटी अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी अलग है. तो कोई कमिटी में कुछ ओवरलैप वगैरह कुछ नहीं है, उल्टा सिंपल हो गया हमारे लिए, राइट रुग्वेद? ओवरलैप नहीं है तो अच्छा हुआ ना कि सारे रिसर्च कमिटी अलग, टीचिंग कमिटी अलग, एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर अलग, राइट? नो टू कमिटी हैव मेंबर्स इन कॉमन एंड देयर वर टोटल 24 पीपल. ओके, रिमेंबर दिस नंबर, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जब जाऊंगा तो ये नंबर तुम भूल जाओगे नहीं तो. देयर वर 24 पीपल, 24 members. No two committee are of the same size. Don't tell me, don't take it as 24 को 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, 8 8 8 ऐसे नहीं था. तीनों कमिटीज के साइज डिफरेंट थे, कुछ भी हो सकता है, फिर 7 8 9 6 4 और 14, it can be anything as of now. So each committee has 3 types of people. उसमें ब्यूरोक्रेट्स है, एजुकेशनलिस्ट है और पॉलिटिशियंस है, with at least one from each of the 3. हर एक कमिटी में एक ना एक ब्यूरोक्रेट, एक ना एक एजुकेशनलिस्ट एंड at least one politician. Okay, the facts are known. The number of bureaucrats in the research and teaching committee are equal, while the number of bureaucrats in the research committee is 75% of the number of bureaucrats in administration committee. Guys, give it a try. I'm quite sure you can try this question at your own. अपने पास बस 3 clues है, that's it. ये 3 ही clues है, first, second, third. Try to frame some, try to get the number of members, कितने, कौन सी कमिटी में कितने members हैं और वो किस टाइप के हैं, मीन्स ब्यूरोक्रेट्स कितने, एजुकेशनलिस्ट कितने, पॉलिटिशियंस कितने. Hopefully you are getting how to represent the information first thing,
दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट, ये सेट थ्री का क्वेश्चन नहीं है गाइस, किसी ने सेट थ्री के बारे में सोच रहे होंगे तो यहाँ पे ये पढ़ो प्रॉपरली। नो टू कमिटीज हैव एनी मेंबर इन कॉमन, कोई ओवरलैप नहीं है, तो ये बिल्कुल तुम टेबुलर डेटा है, सिंपल टेबल बना के खत्म करो। Read these clues. The number of educationalists in teaching committee is less than the number of educationalists in the research committee. The number of educationalists in the research committee is an average of the number of educationalists in the other two committees. And 60% of the politicians are administration. 60% of the politicians are in administration committee and 20% are in teaching committee. All clear? गाइस ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। टोटल 24 ही लोग हैं, ऐसे कोई बड़ा नंबर है नहीं, तो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर यू, बट आई एम क्वाइट श्योर अगर तुम प्रॉपर ट्रिक्स, कैलकुलेशन ट्रिक जो लोग यहाँ पे नहीं यूज करेंगे ना, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत लेंदी लगेगा तुम्हें। तो आई एम गोइंग टू शेयर विथ फ्यू कैलकुलेशन ट्रिक, यू विल रियली फाइंड दिस क्वेश्चन सो इजी एंड क्विक। So give it a try first for next 1 minute, 1 or 2 minute. So this is the question. First question, we'll come to the question part later. So first of all, let's understand how to represent the information. There were total 24 members and we need to divide. R is for research, teaching, administration. T is for teaching, A is administration, B bureaucrats, E educationalist, and P politicians. All of you with me? तो गाइस चलो पहले यूज करते हैं फर्स्ट क्लू। द नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन रिसर्च एंड टीचिंग कमिटी आर इक्वल। रिसर्च में एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं तो टीचिंग में भी एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, ओके। while the number of bureaucrats in the research committee is 75% of the bureaucrats in the administration committee। इसका मतलब क्या हुआ? तो एक काम करते हैं ऋग्वेद, अगर मैं यहां पे 100x लू तो 100x का 75% कितना? यहां पे 75x और यहां पे 75x। इज इट राइट? All of you with me? Guys, give me a thumbs up if you understand this part. ब्यूरोक्रेट्स जो रिसर्च एंड टीचिंग कमिटी में इक्वल है एंड रिसर्च में 75% ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी है, तो डेफिनेटली 75x हो जाएगा दोनों में। ऑल क्लियर? ओके ऋग्वेद, बट एक चीज समझो, क्या मुझे 100x लेने की जरूरत है? क्या मैं इसको रेशो में नहीं ले सकता हूं? अगर यहाँ पे 100, यहाँ पे उसका 75% और यहाँ पे 75% ऐसे होगा इसी का, तो अगर यहाँ पे 4 ब्यूरोक्रेट्स हैं तो यहाँ पे 3 होने चाहिए और यहाँ पे 3 होने चाहिए। Isn't it right? Instead of writing 75x, क्योंकि नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे टोटल 24 भी नहीं है, तुम कहाँ पे इतने बड़े नंबर्स ले रहे हो 100x वगैरह। 100x 75x लिखने से बेटर मैं 25 से डिवाइड करके इसको 4x लेता हूं, इसको 3x लेता हूं, इसको भी 3x लेता हूं। इज दैट ओके? ऋग्वेद ये समझा तुम्हें 3x और 4x क्यों लिया मैंने? ये तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा गाइस, बिकॉज 3 ब्यूरोक्रेट्स इधर लिए, 3 इधर लिए और 4 इधर लिए, तो वैसे भी 10 हो गए। डबल अगर करोगे ना तो नहीं होगा ये। क्लियर? आई होपफुली यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेकिंग दैट, एंड इसके बाद तुम खुद से गेस भी कर सकते हो एक्चुअल वो नंबर क्या हो सकते हैं। राइट? ओके, let's come to the next point. The number of educationalists in the teaching committee is less. Educationalist जो है वो teaching committee में less है,
than the number of educationalists in the research committee, and the number of educationalists in the research committee is the average of the number of educationalists in the other two committees. मतलब अगर यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो यहाँ पे A plus B divided by 2 है. All clear? Average of the number of educationalists in the other two committee. The number of educationalists in the research committee. रिसर्च में अगर टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में A और B है तो यहाँ पे A plus B divided by 2, which is the average. Is it right? All clear? And the last clue, Rugved, chalo, let's finish it quickly now. 60% of the politicians are in the administration committee, 20% are in the teaching committee. मतलब पॉलिटिशियन में से 20% यहाँ पे है, 60% यहाँ पे है, तो 20% यहाँ पे होंगे. तो रुग्वेद मुझे एक बात बताओ, ये जो 20% 60% है, टोटल तुम 100% ले रहे हो, इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं. क्या लिख सकते हैं इसको? 1 1 और 3 और टोटल 5 ही लेते हैं. 20 से डिवाइड कर दिया. तो अगर मैं यहाँ पे 5y लेता हूं तो यहाँ पे y और यहाँ पे y, सॉरी यहाँ पे 3y होगा, टोटल 5y होगा. इज इट राइट? चलो अभी मैंने जो बताना था वो बता दिया. इसके बाद तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स. जो कैलकुलेशन ट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं ऑलरेडी तुम्हारे सामने रख चुका हूँ. अभी लेट्स ट्राई हाउ टू गेट द कैलकुलेशन डन. कितने लोगों को एक्चुअल नंबर्स लिखते आगे इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई? और रुग्वेद एक बात मुझे बताओ, टोटल कितने लोग हो गए? ब्यूरोक्रेट्स 10x हो गए. ये 5y हो गए. इज इट राइट? एंड एजुकेशनलिस्ट कितने हुए बताओ? A plus B plus A plus B का हाफ. अरे मल्टीप्लाई नहीं करना है. एजुकेशनलिस्ट कितने हुए? 2A plus 2B plus A plus B, which is 3A plus 3B. 3/2 टाइम्स ऑफ A plus B हुआ. Yes or no? Is it right, Rugved? Okay, 10x. Okay, not an issue. तो रुग्वेद 10x इधर है, ये 5y है, और ये जो 3 टाइम्स ऑफ A plus B by 2 मैं इसको बोल सकता हूं. तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा है ये 10 का मल्टीपल है, यहाँ पे 3 का मल्टीपल है, और ये 5 का मल्टीपल है, ये सब मिला के सिर्फ 24 है. व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट दिस? कितने लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं अभी भी? गाइस ये क्वेश्चन है ना, जब से मैंने वो इक्वेशन लिखे हुए हैं सारे, तभी खत्म हो जाता है अगर तुमने केयरफुली ऑब्जर्व किया तो. क्या लग रहा है रुग्वेद, तुम बताओ, x का वैल्यू 2 हो सकता है क्या? लग रहा है x का वैल्यू 2 हो सकता है? गाइस सिंपल एक इक्वेशन बन रहा है यहां से.
एक नंबर 10 का मल्टीपल, एक 5 का मल्टीपल, एक 3 का मल्टीपल, और सब मिला के सिर्फ 24। इट्स नॉट अ बिग नंबर, इट्स सो स्मॉल नंबर। 10x प्लस 5y प्लस 3 इंटू के, 3 का मल्टीपल इज 24। मैं x का वैल्यू मुझे 1 ही रखना पड़ेगा, y का वैल्यू भी 1 रखना पड़ेगा, तब ये 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। और फिर जो k है ना, k का वैल्यू मुझे रखना पड़ेगा 3 इंटू 3, 15 प्लस 9 होता है 24, और इससे ज्यादा कुछ पॉसिबल नहीं है। तुम y का वैल्यू 2 रखो, 10 हो जाएगा, 20, फिर बचा हुआ जो 4 रहेगा वो 3 का मल्टीपल नहीं बचेगा। इज इट राइट? Rugved, what is the value of x and y? क्या मैं बोल सकता हूं x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 एंड k इक्वल्स टू 3? सिंपल था ये। k इक्वल टू 3 आएगा रुग्वेद, राइट राइट। तो एक काम करते हैं, जब x इक्वल टू 1 है तो हटा दो इसको, y की जगह पे 1 रख दो। सीधी सीधी बात हो गई रुग्वेद। यहाँ पे ये 9 एम्प्लॉइज है, 9 मेंबर्स एजुकेशनलिस्ट है, 10 ब्यूरोक्रेट्स हैं और 5 पॉलिटिशियंस हैं। ऑल क्लियर? और a प्लस बी का वैल्यू a प्लस बी बाई 2, k मतलब है a प्लस बी बाई 2 इज 3, तो a प्लस बी का वैल्यू जो है ना वो 6 आएगा। a प्लस बी बाई 2 का वैल्यू 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूं, विच इज a प्लस बी बाई 2। और ये जो है ना, हमें पता है कि ये 3 ज्यादा है, मतलब यहाँ पे 1 और 2 ही होगा, और यहाँ पे अकॉर्डिंगली 4 या 5 होगा। ये दोनों मिला के 6 है, और ये ग्रेटर होने की वजह से ये 1 और 2 है। बट ये 1 और 2 रहे, कुछ भी रहे, टोटल तो इसका 9 ही आएगा। तो ये कितना सिंपल इक्वेशन था। एक्चुअली जो तुमने कैलकुलेशन ट्रिक परसेंटेज वाला हमने यूज किया, वो एक्चुअल नंबर्स ही देते जा रहा है तुम्हें क्लियरली। और किसी ने बिना x के भी ट्राई किया होता ना, 3 3 4, इसको 10 लेते हैं, यहाँ पे 1 1 3 5 लेते हैं, तो 9 लोग बचते हैं, तो 9 लोगों को इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यहाँ पे 3 होने चाहिए, ये दोनों मिला के 6 होना चाहिए। बस इतना सिंपल था। वॉज दैट इजी रुग्वेद? डू वी नीड एनी इक्वेशन एज सच? अगर तुमने, क्योंकि नंबर तो इतना बड़ा था ही नहीं, ये सारे मिला के तो 24 ही मेंबर्स थे। राइट तो रिसर्च कमेटी में कितने लोग हैं बताओ? रिसर्च कमेटी में टोटल कितने लोग हैं? 7। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी और टीचिंग कमेटी का कंफर्म बताते नहीं आएगा, बट श्योरली पॉसिबिलिटी हम बता सकते हैं। यहाँ पे या तो 5 लोग हैं या तो फिर 6 है, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे इधर 1 होगा तो इधर 5 होगा उस टाइम पे, और यहाँ पे 4 होगा। राइट 9 12 और 11, टोटल 17 प्लस 7 24 होना चाहिए। Was that easy? Hopefully it's so simple and you understood it. Just अपने पास 3 क्लूज थे, ये टेबल था, टोटल 24 एम्प्लॉइज थे। That's done. Simple and short question you can have. अब इसके बाद क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं आने वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे। Hopefully all of you understood, guys. Let's move to the questions. What is the number of bureaucrats in the administration committee? Number of bureaucrats in administration committee is 4.
एडमिनिस्ट्रेशन के ब्यूरोक्रेट्स है 4. What is the number of educationalists in research committee? Educationalist in research committee is 3. Then which of the following cannot be determined uniquely based on the information given? The total number of educationalist bureaucrats we are able to get. हमें हॉरिजेंटली सब पता चला था, टीचिंग और रिसर्च कमिटी में से कौन सा पता नहीं चला? रिसर्च कमिटी का टोटल हमें पता चला, सिर्फ हमें टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता नहीं चला है. टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ये दो नहीं पता चले. तो रिसर्च तो पता था. दिस इज वी आर नॉट श्योर. All clear? This is the answer option C. All of you understood, guys? Is there any doubt? And one last question on this side. Sorry, I guess we missed on the first question. Just let me tell you first one. Okay, so this was the first question which was supposed to do. 3 question मैंने आगे के कर दिए. Okay, Rugved, the last question here. Based on the information given, which of the following statement must be false? The administration committee, the number of bureaucrats is equal to the number of educationalists. In administration committee, bureaucrats equal to educationalist. Administration में bureaucrats 4 है, एंड एजुकेशनलिस्ट 5 या 4 कुछ भी हो सकता है. तो एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी में ये मे बी मे नॉट बी में जा रहा है. मे बी दिस वन इज द साइज ऑफ द रिसर्च कमिटी इज लेस दैन द साइज ऑफ द टीचिंग कमिटी. रिसर्च कमिटी का साइज 7 है एंड टीचिंग कमिटी का साइज 5 और 6 है. टीचिंग कमिटी का साइज है 5 और 6 एंड रिसर्च कमिटी का साइज जो है वो 7 है. तो डेफिनेटली ये तो ज़्यादा ही होगा, 5 रहे या 6 रहे. रिसर्च कमिटी साइज इज मोर दैन टीचिंग कमिटी. सो दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली फॉल्स. Right, Rugved, are you getting this answer option B? Yes, so this one is definitely false. Is there any doubt, guys? All of you understood? Okay, that's it for the day. We'll stop here. Hopefully you enjoyed the session, and those who have joined late, my recommendation is go and watch this session. Try to solve this question at your own. अगर नहीं आते हैं तो ये वीडियो देखो. That's it for the day. We'll stop here. Those who want to go for the plus subscription of Unacademy, they can use this code SHAM1 to avail 10% of discount. And do not forget to subscribe to the channel. And for the PDF notes, you can join our Telegram channel, guys. That's it for the day. Good night, everybody. Good night. Bye bye. See you tomorrow.